welcome to the Manushana live session. Today we will talk about men, COVID, and their well-being. Why we need to talk about men's mental health? Hello, ma'am. Here is like Dr. Yogita Hi, Tripathi, Nida. a psychologist, and she will tell us more about that why mental health is more important and why we need to talk about men's mental health. Now, before that, I will request to Yogita ma'am that please tell something about yourself. I know that I can do that, but Nida, it will be good if you can do that. see, I have been in the field of psychology since last 15 years, serving because this is the field of my passion, worked with all people from all walks of life, with children, child psychology, with elderly. My thesis was in geriatrics, and I've also worked with core clinical patients. And the topic of today is, I think, very, very important because I think this is the most ignored topic, maybe because we are too stereotypical when we talk about men's mental health, right? So, and now currently I am heading an organization called Mind Alchemy, and working there, I'm the founder, so serving people through that portal. It's very good that you were my mentor and मैंने ज़्यादा तो नहीं but आप जितने टाइम भी मेरे साथ रहे मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे and it is very very nice thing आप जितने स्वीटली तरीके से बताते हो जितने स्वीट तरीके से आप सब कुछ कैरी करते हो it is all very good. So no, I am so thankful. Today, ma'am, it is all about men, COVID, and their well-being. So, ma'am, can you tell us, can you tell us that why it is important to talk about the men's mental health? Nida, when you ask me why is it important to talk about men's mental health, the immediate thing that comes to my mind is why not? Why should we not talk about men's mental health? Because we are all human beings and we are all susceptible to physical and mental illness equally. Okay, so men are also. Now, let me give you the practical statistical data that every, 1 man in 10 is suffering from some or the other mental illness. Now, this is the data which is a global data. Okay, and again, I would say statistically, this data is reported data. So much, I think there's a vast amount of data that is not even reported. अभी तो ये हम जो बोल रहे हैं कि 10 में से 1 मेन को है कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू, ये तो वो हैं जो हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं. कितने ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ द टैबू दैट सराउंड्स मेंटल हेल्थ. Right. So it is paramount to talk about men's mental health, seeing the statistics also. Right. So our men are, I think we should encourage our men to come and talk about their emotions and become more expressive so that, they can reach out and, we can help them through, navigating through the ups and downs of life. And ups and downs of life are, I think, equal, irrespective of the gender one has. Right. Yes. So I think it is very important to talk about men's mental health also. It is very important because sometimes what happens, we talk about the women, we talk about the children, but sometimes what happens, हम कहीं ना कहीं men's को पीछे छूट देते हैं, like सोचते हैं कि they are very strong. So yes. What do you think that gender role कितना इफेक्ट करता है to the mental health? बहुत ज़्यादा. See, we have a stereotypical thinking, and all of us, okay, irrespective of the cultural barriers, we all have a stereotypical thinking that men has the role of a provider. Okay, men is playing the role of a provider since eternity. So we cannot think that, okay, how can a provider be weak, whether it is mentally or physically? Okay, so that stereotypical thinking, makes us think that, how can men have any mental health issue? No, they cannot have because they are so strong. But we forget, in lieu of the stereotypical thinking, we forget that they are first human beings, okay? And they are equally vulnerable to whether it is physical illness or mental illness, right? So we somewhere have to correct
our own perception and our own stereotypes to be able to see through what a man goes through at the Yeah. mental level, right? Absolutely. Ma'am, what do you think that how men and their well-being, because this is the pandemic period and Corona जैसे कि आया है, तो what do you think that how men's well-being is being affected by the COVID? Again, I would answer in the same manner. It is being affected as much as it is affecting a child or as much as it is affecting a woman. Okay, सबसे बड़ा change आप देखो. You know, though in the today's scenario, even women are working and women also step out of the house. Okay, but a man who is used to kind of going out and working, and so he is now confined and constrained in one environment. Okay, now we all know that pandemic has increased the workload irrespective of the gender roles. Work from home में क्या हो रहा है? The expectations have risen. Okay, and the we are all working, probably overworking. Now, if the man is working, the woman is working for the office, they also have to together take care of the family. Okay, now let us suppose in lieu of all of this, if somebody in the family, maybe an elderly parent or somebody, gets hold of COVID, very, 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 it can happen. The chances are high that in the family somebody can get infected. Now the whole responsibility comes on the man. Yes. Okay, so it is like, okay, as a man, the immediate button is, okay, you do it, you find the right hospital, you find the oxygen, you do everything. Again, because of our own stereotypical role. But then pandemic has equally affected man as it has affected a woman or a child. Pandemic is equal for all of us. But yes, But I would say that ज्यादा इफेक्ट आई थिंक दैट हम सोचते हैं कि वुमेन से पढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई पे चल रहा है, बट हमें नहीं पता मेन को कितना इफेक्ट कर रहा है ये पैंडेमिक पीरियड. बहुत ज्यादा. एक्चुअली हम देखना चाहेंगे निदा तो हम देख पाएंगे. बिकॉज मैंने बोला ना कि एक जो फैमिली का मैन होता है ना, उसके ऊपर जो जिम्मेवारी एक हम अनसेट सी जिम्मेवारी होती है, अनडिफाइंड सी जिम्मेवारी होती है कि कोई इन्फेक्ट हो गया, कोई पेरेंट इन्फेक्ट हो गया, कोई बच्चा इन्फेक्ट हो गया, कोई कोई फीमेल इफेक्ट हो गई, सो ही इज द वन बिकॉज वी हैव दैट जेंडर रोल ऑफ अ प्रोवाइडर. Right, so men are being equally affected. They have, there are so many of my clients, Nida, who are male clients, and pandemic has really affected them. They have been affected by anxiety or depressive symptoms, or if the symptoms are not core clinical, but yes, there are symptoms, the stress symptoms are there, right? Yes, So many of men have lost their parents. So are they not undergoing so much of grief? वो भी तो उस grief में है. They are also coping with that grief, no? Yes. So yes, of course, there is a lot of effect on mental health of men as well. मैम देखिए, वी आर ऐसा होता है कि स्टिग्मा, इट्स अ काइंड ऑफ स्टिग्मा, लाइक वी आर इग्नोरिंग द स्टिग्मा दैट इज सराउंडेड द मेंटल हेल्थ ऑफ द मेन. तो अब क्या होता है कि इट इज killing the men from inside. What do you think that how much true it is? Like it is the stigma that men are not coming out and speaking out about their emotions and all. So what do you think about it? How much Nida, true it is? No, a lot of it is true, but I will acknowledge the fact कि चीजें बदल रही है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, तो चीजें बदल रही है. पर आप देखो, ये आजकल की बात नहीं है. This will date back to the way a boy is parent, कैसे उसकी पेरेंटिंग की गई है. जनरली अगर बॉय है और वो गिर जाता है, रोने लगता है, तो जनरली उसकी मम्मा कहती है, नहीं, नो 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 नो, बॉयज डोंट क्राई, ओह बॉयज आर स्ट्रॉन्ग. ओके, तो ये सब चीजें कौन डाल रहा है? if the boy is too sensitive or if he is expressing his things, the mother would say, तू तो गर्ल्स जैसी बातें कर रहा है, राइट?
तो निदा ये आजकल की बात नहीं है, ये अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है. हम अपने स्पेशली इन द इंडियन सिनेरियो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट वी एक्चुअली पेरेंट आवर बॉयज लाइक दैट. बॉयज नहीं रोते, बॉयज ये नहीं करते, बॉयज सेंसिटिव नहीं होते, बॉयज ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, बॉयज जाके अपनी बात मन की नहीं बताते, बॉयज गॉसिप नहीं करते. तो कितना कुछ तो हमने सप्रेस कर दिया. हमने उन्हें सिखाया नहीं ना, हमने उन्हें सिखाया नहीं कि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो. यू ऑल्सो कैन, है ना. तो सारी कहानी पेरेंटिंग पे आ जाती है, सारी कहानी वहां से आ जाती है कि हमने बचपन से अपने बॉयज को कैसा ट्रेन किया है. इफ वी विल ट्रेन आवर बॉयज लाइक दैट, दे विल ग्रो अप टू बी पीपल हु आर टू साइलेंट. आपने कभी देखा है निदा, आई एम श्योर हम सब ने ऑडियंस में भी पीपल विल अग्री विद मी कि जनरली इफ अ मैन इज सैड, अगर एक आदमी उदास है तो वो जनरली साइलेंट हो जाएगा. एक फीमेल उदास है तो वो 4 जगह फोन करेगी, बहन से बात करेगी, मम्मी से बात करेगी. ये फर्क दिखता है ना. क्यों? क्योंकि हमने तो आदमी को सिखा दिया कि भैया तुम तो आदमी हो, तुम किसी से बात नहीं करोगे, तुम चुप रहोगे, है ना. तो यहाँ हो गई गड़बड़. पेरेंटिंग हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले when it comes to man's mental health. I always tell my clients that parent your boys correctly. अच्छा, जेंडर रोल्स की तुम बात कर रही हो. अगर एक मैन, इफ देयर इज अ मैन जिसकी, अगर उसकी सपोज घर में लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई या वाइफ गई हुई है कहीं, अच्छा तो भाई हमारे तो मैन को खाना ही नहीं बनाना आता, क्योंकि जेंडर रोल की वजह से, स्टीरियोटिपिकल थिंग की वजह से हमने उसे सिखाया ही नहीं. तो वो प्रोवाइडर है लेकिन सिर्फ घर में सैलरी लाने तक. तो ये जेंडर रोल्स को ना हमें थोड़ा सा और इसको एडवांस करना, वी विल हैव टू अपडेट, राइट. यस. अच्छा मैम, Yes. आप एक बात बताइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मेन होते हैं तो वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने सारे इमोशन, चाहे उनकी पेरेंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई, बट कभी कभी दूसरों को खुश करने के लिए दे सप्रेस ईच एंड एवरी इमोशन. सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर किसकी गलती है? लाइक इफ ही इज हैविंग अ गर्लफ्रेंड, इफ ही इज हैविंग अ वाइफ, राइट, ही इज हैविंग अ मदर को खुश करने के लिए वो अपना जो इमोशन है सप्रेस करेगा, और वाइफ को खुश करने के लिए जो चीज उसे नहीं करनी है वो भी करेगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पर किसका फॉल्ट है? देखो ऐसा निदा, करना नहीं करना चाहिए? निदा देखो, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ. जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसको बहुत ज्ञान दिया जाता है. ऐसे मत करना, ऐसे मत करना. अच्छा, फिर ये भी समझाया जाता है कि बड़ी एडजस्टमेंट इश्यूज आती हैं, कुछ आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी लग जाता है एडजस्ट करने में. पर एक आदमी को कोई नहीं बताता. सो द मैन इज नेवर प्रिपेयर्ड कि शादी के बाद क्या है, शादी के बाद बैलेंसिंग किसको कहते हैं, शादी के बाद आपने किस तरीके से बिहेव करना है कि आप, what I am trying to say, Nida, is that post marriage, if a woman goes through a lot of adjustment issue, even a man goes through a lot of havoc. I always say the Indian men become like a shuttlecock. वहां से वाइफ की पूरी कर रहे हैं, यहाँ से मदर की. So now, Nida, again, the problem is, our men are not prepared. Okay, so they don't know how to balance. और क्यों? क्योंकि अरे तू तो, you are a man, तेरे को सब आना चाहिए, तू तो स्ट्रॉन्ग है, तू तो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है. तो होता क्या है, जब ये ये जब टग ऑफ वॉर शुरू होता है ना मदर और वाइफ के बीच में, तो जो इफेक्ट आता है ना मैन की मेंटल हेल्थ पे, उसकी बात कभी नहीं की जाती. And I'm telling you, the man is sandwiched. Half of the men who are clients share this similar thing. So now, here I would say that, again, the parents and the girl, they are also supposed to be trained, but basically the man has to be trained
इन एक्सप्रेसिंग, वो अपनी मम्मा को जाके बोल सके कि आप आपकी ना वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, या वो अपनी वाइफ को जाके बोल सके कि यार तुम थोड़ा सा इट 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 बिकम्स बॉदरसम फॉर मी। होता क्या है निदा, द मैन बिकम्स द प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों हम आदमी को हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्वर की पद्धति पे बिठा देते हैं, है ना? सो वी विमेन आर ऑल्सो समवेयर अकाउंटेबल फॉर देयर mental health, and we can tell our husbands or we can tell our sons, beta it's okay, or it's okay, you can come and speak with me. हम एक वाइफ जाएगी अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड ऑफिस से आ रहा है, थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, उसका ऑफिस में भी देखो टारगेट्स होते हैं बहुत कुछ, वो घर आया, आज आपको पता है मम्मी ने क्या किया, आज उन्होंने ये किया, वहां से मदर तुझे पता है मेरे तो बहुत मुश्किल हो गया है, तुम तो ये तुम तो वो। तो वो बेचारा ऑफिस की तकलीफ से भाग के घर आ रहा है, लेकिन घर में एक और ही सिचुएशन है उसके लिए हैंडल करने के लिए, तो वहां भी टारगेट है, यहाँ भी टारगेट है, जिसकी बात की नहीं जाती है ना? तो ये बात करना, और yeah, and we have to teach men to talk about it, to tell to the wife or tell to the mother that I am not able to handle this, it affects me, right? Yes. थैंक यू मैम। यहाँ पर आई टेक वन क्वेश्चन। यहाँ पे किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पेरेंटिंग का रोल क्या है टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ लाइक चिल्ड्रन ऑफ देयर चिल्ड्रन। See, parenting I think is the prime, क्योंकि हम आज इस पोर्टल पे मेंस मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक अच्छा रहेगा कि मैं पेरेंटिंग को स्ट्रीमलाइन करके बॉयज की पेरेंटिंग की बात करूं। आपका रोल एज अ पेरेंट अपने बेटे के लिए, अपने बॉय के लिए उसको लाइफ स्किल सिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के, स्पेशली बॉयज के लिए, हम सोचते हैं उनका आईक्यू बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ईक्यू की बात कोई नहीं करता, इमोशनल क्वोशंट की बात कोई नहीं करता, राइट? हमने बॉयज को भी हम क्या बोलते हैं, तुम बॉय हो तुम स्ट्रांग बनो, पर हम ये नहीं सिखाते कि तुम बॉय हो या तुम गर्ल हो, कुछ भी हो, पहले तुम दूसरे का दर्द समझो, ठीक है? अब उसकी, और तुम दूसरे का दर्द समझो और अपने दर्द को बयान करना भी सीखो। लर्न टू एक्सप्रेस, टीच योर बॉयज इट इज ओके टू क्राई, टीच योर बॉयज की बेटे अगर आपको स्कूल में कोई बुली कर रहा है तो कम एंड टेल मी, वी विल रिजॉल्व इट, रादर देन सेइंग तू पिट के आ गया, वापस तूने मारे नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं देते, हम उसमें भी ये बोलते हैं तू पिट के कैसे आ गया भाई, तू इतना वीक है तो पिट के आ गया। नो, यू हैव टू लिसन टू योर बॉयज। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पेरेंटिंग, parenting for boys, please teach your children, please teach your boys household work, please teach them, because when a man is cooking, अच्छा आप एक बात बताओ, आप सबने नोट किया होगा, ऑडियंस में भी नोट किया होगा, जो बड़े अच्छे शेफ है ना हमारे रिनाउंड, वो सारे मेन है कि नहीं है? yes. है ना? तो सी द मेन हैज दैट प्रिसिशन टू बिकम वेरी गुड कुक्स, पर हम स्टीरियोटिपिकली उनको बनने, अच्छा किसी बच्चे ने जाके बोला ना मम्मा मैं तो शेफ बनूंगा, अच्छा तू खाना बनाएगा, तेरा यही काम रह गया है। दो द थिंग्स आर चेंजिंग, बट एज पेरेंट्स वी हैव टू ब्रिंग अप आवर बॉयज वेरी वेरी वेल, उनको लाइफ स्किल्स सिखाओ, उसको अपना कमरा खुद साफ करने दो, उसकी बहन का कमरा तो मतलब पेरेंट्स बोलते हैं, आपने अपनी डॉटर को बोलेंगे अपना कमरा साफ करो, भैया का भी कमरा साफ करो, क्यों भाई? भैया भाई अपने आप अपना कमरा साफ करेगा। सो टीच योर बॉयज द लाइफ स्किल्स, इट विल मेक देम सेंसिटिव, एंड यू नो व्हाट निदा, if they know all these things they will be very sensitive towards their woman, जिनसे भी वो शादी करेंगे उनके प्रति वो बहुत एम्पैथेटिक होंगे, डोमिनेटिंग नहीं होंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, राइट? सो बॉयज की पेरेंटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की जानी चाहिए, स्पेशली इन इंडियन सिनेरियो। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मैंने पेरेंटिंग कंप्लीट की बात नहीं की, मैंने बॉयज की पेरेंटिंग की बात की है।
Yes. अच्छा मैम, one last question. कोई 5 tips. I'll ask you 5 tips for the men, like to keep mental health very very good. अपनी ओके, mental health को कैसे कर सकते हैं ओके, उनके। यस। सबसे पहली टिप, आप वो सब करना सीखो जो एक फीमेल करती है। आज के डेट में क्यों फीमेल्स बड़ी आजाद है और खुश रहने लगी हैं? क्यों? क्योंकि उनको ड्राइविंग भी आ गई, उनको काम भी करना आ गया, उनको टेक्निकल भी, बड़ी टेक savvy भी हो गई, सारे रोल्स निभा रही हैं। लेकिन आज भी हमारे मेन बेचारे चाय बनाते बनाते अपना हाथ जला ही लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो किचन का काम, जो आप एक फीमेल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम होनी जरूरी है। इट इज नॉट अबाउट जेंडर रोल्स, इट इज अ लाइफ स्किल। तो अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आपको सबसे पहले लाइफ स्किल सीखनी है। ठीक है। सेकेंड टिप आपके लिए फॉर ऑल द मेन आउट देयर इज लर्न टू हैव अ बाउंड्री। आप घर जाते हैं, यहाँ से बीवी चिल्ला रही है, यहाँ से माँ चिल्ला रही है, उनको बोलो दिस इज माई स्पेस। आपको आना चाहिए कि कैसे अपनी बाउंड्री आप बना पाओ। आपके लिए मी टाइम जरूरी है। अब आप कोई स्पोर्ट ज्वाइन करते हो मी टाइम के लिए, अपनी कोई हॉबी ज्वाइन करते हो, आप जाके बैडमिंटन खेलते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। थर्ड टिप फॉर ऑल द मेन आउट देयर इज प्लीज, even if you have 100 responsibilities, please indulge in some physical activity. फिजिकल वर्कआउट इज वेरी, सी माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है नेता। सो अगर आप फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखते हो, आप मेंटली ठीक रहोगे। ठीक है। तो हमारे जो ये मेन है ना, इतने काम के बोझ में दबे हुए हैं कि उनको वो उठने का टाइम भी नहीं होता, बट दे मस्ट वर्क आउट। फिजिकल वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द थर्ड टिप। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज लर्न टू एक्सप्रेस। लर्न टू एक्सप्रेस, डोंट थिंक दैट इट इज, अगर मैंने अपनी बात मन की कर दी तो मैं तो भैया उतना मैस्कुलिन ही नहीं हूं। ऐसा तो नहीं है ना, है ना? सो योर मैस्कुलिनिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ मच कैन यू एक्सप्रेस। आप उतने ही मैस्कुलिन रहोगे अगर आप एक्सप्रेस करोगे। तो अपनी मनोस्थिति को एक्सप्रेस करना जरूरी है। Fifth and a very important tip, Nida, very important tip. If there is some problem, हमारे इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, देखो मेन को भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली पर्टेनिंग टू देयर सेक्सुअल हेल्थ। जब ऐसा कुछ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, वो सप्रेस करते रहते हैं, उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं। दे आर सपोज टू गो एंड विजिट a doctor, a urologist or a psychologist or somebody who can deal with the issue. Generally क्या होता है, कारपेट के अंदर क्यों भाई, मतलब मेरी तो मेरे ऊपर तो उंगली उठ जाएगी। नहीं। और ये किसने किया है निदा? ये हम ही लोगों ने किया है। हम उन्हें स्पेस ही नहीं देते हैं। अगर उन्हें कोई तकलीफ है तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जब एक फीमेल को, एक लड़की को पीसीओडी होता है तो क्या वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है? अगर किसी गर्ल को कोई सिस्ट हो जाता है, उसको कोई गायनोकोलॉजिकल इश्यू होता है, तो वो नहीं जाती है क्या? उसका तो हम इतना ह्यू एंड क्राई नहीं बनाते हैं। सो लेट अस नॉर्मलाइज men physical and mental health both. Right? So these 5 tips for all the men out there. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you for being here. And in future also, I'll just discuss. We just discuss some, or again some another topic with you. That will be very very. I will be very very obliged. And thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much for having me. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. All the best. Thank you, ma'am.